पाल सिंह जी का इस मंच आभासी मंच पे स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है सर। श्रीमती डॉक्टर सविता सोगर, कुलपति राय विश्वविद्यालय झारखंड, इस मंच पे मैं स्वागत करती हूँ। मैम आपका स्वागत है। इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी विद्वतजनों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबका स्वागत है और जो बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उन बच्चों का भी स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हम्म, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वैसे एक विशेष अनुग्रह है हमारी बहन सलोनी जी की तरफ से, क्योंकि वे अभी किसी और कार्यक्रम में जाने वाली हैं, उनका कोर्स चल रहा है, तो अपनी व्यस्तता के बावजूद बहन श्रीमती सलोनी टंथनी जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। आपसे हम तमिल भाषा तथा कविवर सुब्रमण्यम भारती पर कुछ विशेष बातें सुनेंगे। नांगल उंगलई वरक की रोम। நன்றி அண்ணா. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு ஆசிரியர்களே, இனிய வணக்கங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நாம் இங்கு கூடியிருப்பது மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் பிறந்த நாளை நினைவு கூறுவதற்காக. மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஒரு கவிஞர் மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு தேசபக்தர், சிந்தனையாளர் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதி. தேசத்தின் விடுதலைக்காக தனது எழுத்துக்களையே ஆயுதமாக கொண்டு போராடினார். ஒளிப்படைத்த கண்ணினா என்பது எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாரதியாரின் பாடல்களில் ஒன்று. அது இப்போ நான் பாடுவேன். ஒளிப்படைத்த கண்ணினாய் வா வா வா, உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா, களிப்படைத்த மொழினாய் வா வா வா, கடுமை கொண்ட தோழினாய் வா வா வா, தெளிவு பெற்ற மதியினாய் வா வா வா, சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் வா வா வா, எளிமை கண்டிறங்குவாய் வா வா வா, ஏறு போல் நதியினாய் வா 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 என்ற வரிகள் மக்களின் கண்களின் ஒளியையும் மனங்களில் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தின. இந்த பாடல் இந்திய விடுதலை போராட்ட காலத்தில் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரால் எழுதப்பட்டது. இந்த பாடல் மூலம் தைரியம், தெளிவு, கருணை மற்றும் வலிமையுடன் இருந்து நிற்குமாறு இளைஞர்களையும் இந்திய மக்களையும் பாரதியார் அழைக்கிறார். வா 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 என்ற சொல்லை பாரதியார் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துகிறார். பயம், அறியாமை மற்றும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுத்து எழுமாறு மக்களை அவர் அழைக்கிறார். சுதந்திரமும் நீதியும் நிறைந்த ஒரு நாட்டை உருவாக்க முன்னேறுமாறு அவர் ஊக்குவிக்கிறார். நான் பாரதியாரை மிகவும் விரும்புவதற்கான முக்கிய காரணம் பெண்களை பற்றி அவர் கொண்டிருந்த உயர்ந்த எண்ணங்களே. பெண்கள் கல்வி பெற வேண்டும், ஆண்களுக்கு சமமாக வாழ வேண்டும் என்று அவர் உறுதியாக கூறினார். பெண்களை அவர் புதுமை பெண் என்று அழைத்து தைரியமும் அறிவும் கொண்டவர்களாக கண்டார். பெண்ணடிமை ஒழியும் நாள் அந்த நாள்தான் உண்மையான விடுதலை நாள் என்பது அவரது கருத்தாக இருந்தது. ஜாதி மத வேறுபாடுகளை மறுத்து எல்லா மனிதர்களும் சமம் என்றார். பாரதியார் கனவு கண்ட இந்தியா சுதந்திரமும் சமத்துவமும் அறிவும் நிறைந்த நாடாகும். இந்த கனவை நனவாக்குவது நம்முடைய கடமை. முடிவாக பாரதியார் நம் மனங்களில் என்றும் வாழும் மகாகவி. அவரது சிந்தனைகளை பின்பற்றுவதே அவருக்கு நாம் செய்யும் சிறந்த மரியாதை. நன்றி, வணக்கம். नंदरी तंगची। अब हमारे अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर अशोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। सर कृपया कुछ विचार अपने दीजिए
या तो हिंदी भाषा पर या फिर अपनी अपनी बोली पर, क्योंकि यह एक उत्सव है जिसमें हम सभी भाषाओं को सम्मानित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर अशोक अभिषेक की बात हो रही है, डॉक्टर अशोक अभिषेक, जी, डॉक्टर अशोक अभिषेक जी। क्योंकि यहाँ जी दो जी दो मैं अशोक कुमार बैठे हैं, डॉक्टर दोनों डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर अशोक दोनों अभिषेक जी आज आउट ऑफ स्टेशन हैं। नहीं जी। तो वो तो दीदी तो आप भी डॉक्टर उनके स्थान पे बोलिए। तो डॉक्टर डॉक्टर अशोक शारदा जी कुमार को भार्गव हैं, सोमदत्त जी, डॉक्टर जी, अशोक कुमार भार्गव हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी, ये बोल सकते हैं। जी। सर आपका मंच पर स्वागत है। कृपया हमारे मंच पर कुछ अपने विचार व्यक्त करके हमको सम्मानित कीजिए। आपका स्वागत है मंच पर सर। हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम इस राष्ट्र के महान राष्ट्रीय कवि, जो न केवल चिंतक थे, विचारक थे, वरन एक महान स्वाधीनता सेनानी थे, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक संबंधों की बुनियाद को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुब्रमण्यम भारती जी को आज स्मरण कर हम वास्तव में उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त कर रहे हैं। उनका समग्र चिंतन मूलतः राष्ट्रीय स्वाधीनता, नारियों के उत्थान, जातिवाद के विभेद को समाप्त करने, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं के उन्नयन के लिए केंद्रित था। वे कहते हैं कि यदि हम अंग्रेजों से ये चाह रहे हैं कि वे हमें स्वाधीनता दे दें, तो क्या भारतवासी महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दे सकते? क्योंकि आजादी हमें यदि मिलेगी तो वो आजादी सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होगी, महिलाओं के लिए भी होगी। तो उनका जो समग्र साहित्य है वो सामाजिक न्याय की भित्ति पर टिका हुआ है, और उनका जो प्रेम है भाषा के प्रति, वो एक बार अपनी पत्नी को पत्र में लिखते हैं कि मेरी प्यारी चिल्लम्मा, आपको आशीर्वाद, आपका पत्र मिला, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूं जो आपको परेशान करे। अच्छा होगा कि तुम चिंता करने की बजाय तमिल भाषा सीखो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य भाषाओं के प्रति उनके मन में प्रेम नहीं था। वे अन्य भाषाओं को भी उतना ही प्रेम करते थे जितना तमिल को प्रेम करते थे। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब उनका महाप्रयाण हुआ तो मात्र 14 व्यक्ति ही उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि सुब्रमण्यम भारती जैसा महान व्यक्तित्व, उनका मूल्यांकन आज मूलतः हो नहीं पाया है। वे ये कहते हैं कि यदि हम स्वाधीनता के बदले कोई तुच्छ भौतिक वस्तु ले लें, तो वह भौतिक वस्तु ठीक वैसी ही होगी कि सूरज की रोशनी को देकर हम जुगनू को प्राप्त कर लें। अर्थात स्वाधीनता उनके चेतना का मूल स्वर था। बंग भंग आंदोलन ने जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उनके मन में राष्ट्रीय भावना की जो तेजस्वी जो मशाल थी, वो बहुत और अधिक चमत्कृत हो गई है। और खासतौर से जो सिस्टर निवेदिता थी, उनके संपर्क में जब आए तो उनकी जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, सामाजिक समानता, महिलाओं का सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, वो और अधिक प्रखर होकर उनके साहित्य में उजागर होती है। वे एक बार लिखते हैं कि जिस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को अपना विशाल स्वरूप दिखाकर परमात्मा स्वरूप का दर्शन दिया, ठीक उसी तरह से सिस्टर निवेदिता ने संपूर्ण भारत माता का दर्शन कराकर देशभक्ति की प्रेरणा मुझे जो दी, उसके प्रति मैं अनुग्रहित होकर अपना ये जो प्रथम ग्रंथ है उनको सादर समर्पित करता हूं। तो कुल मिलाकर चूंकि समय की मर्यादा है, मैं सुब्रमण्यम भारती के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं। और आज का ये जो आभासी पटल पर
जो कार्यक्रम हो रहा है वो निश्चित रूप से सुब्रह्मण्य भारती के चिंतन मनन के प्रति हमारी एक विनम्र श्रद्धा सुमन भी होंगे। जहाँ तक मुझे याद है कि वे केवल भारतीय दर्शन और भारतीय वेद शास्त्रों से ही प्रभावित नहीं थे, वरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी जो दृष्टि थी बहुत पैनी थी। 1917 में रूस में जो जारशाही की क्रांति का अंत हुआ, उस वक्त उन्होंने जो कविता लिखी थी नया रूस, वह उनके राजनीतिक दर्शन को स्पष्ट करता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमारी आधी आबादी अभी भी आजाद नहीं हो पाई है। देश में अगर बेटियां मायूस और नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए, देश क्या आजाद है? इनके आजाद के बिना हर बात बेबुनियाद है ये घर आजाद तो सारा जहां आजाद है। तो सुब्रह्मण्य भारती जी का जो चिंतन है, उसकी उपादेयता, उसकी प्रासंगिकता तब ही सिद्ध हो पाएगी जब हम उनका जो सामाजिक न्याय का दर्शन है, महिलाओं के सशक्तिकरण की जो अद्भुत उनकी धारणा है और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति अपने आप को उत्सर्ग करने की जो ललक है, उसे जिंदा बनाए रखने की आवश्यकता है। वे केवल पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु नहीं है या किसी कार्यशाला में उन पर विमर्श करने का विषय है। दरअसल ये इन सब से बहुत परे उनका व्यक्तित्व बहुत विराट और उनका चिंतन का फलक बहुत व्यापक है, जो आज के राष्ट्रीय संदर्भों में उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। मैं सदन का बहुत बहुत आभारी हूं, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, अवसर दिया। एक बार पुनः परम श्रद्धेय भारती जी के श्री चरणों में शत शत नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर डॉक्टर सोमदत्त जी, डॉक्टर भार्गव मध्य प्रदेश शासन में जिलाधिकारी रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, अपर सचिव रहे हैं, कई कार्यों का आपने किया हुआ है। आप अर्थशास्त्र में पीएचडी हैं और एलएलबी भी है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में भाग लेकर हमें कृतार्थ किया है सर। तो आगे बढ़ते हैं। अगर डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी उपस्थित हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने दूसरे नाम से जुड़ते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि यहाँ पर वे आए हैं या नहीं। फिर वक्ता के ही रूप में श्री अमरकांत झा, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। श्री महेंद्र सिंह जी, संजय, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी पीयूष तो थे। जी, सभी को डॉक्टर श्री महेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है सर जी इस मंच पर। बहुत अपने विचार बहुत व्यक्त करने सभी के लिए को मैं आपको नमस्कार, आमंत्रित अभिनंदन। परम पूजनीय माँ शारदे भारत माता और इस चराचर जगत को चलाने वाले ओम, आज के इस आभासी पटल पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राज लक्ष्मी कृष्णन जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजशेखर जी, अपने हरीशी पाल जी, सविता सेंगर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, क्षेत्र संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, एवं अन्य विशिष्ट और अतिथि और वक्ता जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं अपनी ओर से सभी को अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी एक विशेष दिन पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी को ज्ञात है कि अपने प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती जी की जयंती के रूप में आज दिवस यह मना रहे हैं। यह दिवस भारत की, यह जब दिवस प्रारंभ हुआ था तो सचमुच यह विचार करके कि अपने देश की भाषाएं अनेक हैं, लेकिन भाव सबका एक ही होना चाहिए, और इसी भाव के साथ ये भारत की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विरासत का जो जश्न मनाने का ये कार्यक्रम हम सभी करते हैं। और इसका उद्देश्य अगर सही कहा जाए तो बच्चों को अपनी मातृभाषा से जोड़ने का, भाषाई एकता को बढ़ाने का और भारत की विभिन्न भाषाओं के महत्व और राष्ट्रीय एकता का संदेश प्रसारित करने का यह दिवस है। विभिन्न जो भाषाएं हैं उनको सीखने और समझने की जरूरत ये दिवस जो है देता है।
और निश्चित रूप से हम सभी को जितनी भी भाषाएँ चलती हैं, वो सभी को सीखने का प्रयास और समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी एक बहन जी बोल रही थी, हम सभी उस भाषा को नहीं समझ रहे थे, लेकिन उस भाव को निश्चित रूप से समझ गए थे। बहुत ध्यान से मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि उस भाव को मैं समझ रहा था कि वो उनका क्या कहने का भाव है। तो अर्थात व्यक्ति की पहचान भाषा से ही होती है और जब भाषा ही ठीक नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से हम सभी अपनी पहचान को खो बैठेंगे, अपने राष्ट्रीय पहचान को खो बैठेंगे। इसी तरह की बात अगर हम करें कि ये स्वभाषा पर गर्व होना चाहिए क्योंकि पारस हम लोग नाम सुनते हैं और जो पारसी जितने भी हैं, अब कहीं भी इस दुनिया में बस कुछ भारत में बचे रह गए हैं और उसका कारण था कि ना उनका कोई अपना धर्म स्थापित था, ना कोई अपनी भाषा से ये था, ना ही कोई अपना ग्रंथ उनका था और ना ही कोई उस प्रकार के चीज़ें जो अपने राष्ट्र के लिए आवश्यकता होती है, वो सब चीज़ें थी। आज वो कहीं भी नहीं हैं, केवल भारत में कुछ बचे-खुचे रह गए हैं। तो जब तक अपने स्वभाषा से हम प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हमारी पहचान नहीं रहेगी, हमारा देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण नहीं रहेगी। और यही कारण है कि विभिन्न भाषाएँ होते हुए भी हम एक-दूसरे की संस्कृति के वाहक बनते हैं। भाषाएँ परंपरा के वाहक होती हैं और जिससे समाज बनता है। तो ये इस प्रकार से अ, हम भाषा को इतिहास और संस्कृति मूल्यों को सहेजने का ये जो काम है, ये भाषा के माध्यम से ही हम करते हैं। तो ये और यह चीज़ें हम अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए, तो भाषा के द्वारा एक-दूसरे से जुड़ कर के हम इसके माध्यम से सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और मुझे विश्वास है क्योंकि यह जो भारतीय भाषा दिवस मनाना प्रारंभ हुआ है, हम निश्चित रूप से सभी भाषाओं के प्रति प्रेम रखते हुए और आगे बढ़ेंगे और जीवन में अपने आप को इस प्रकार के भाव से भरेंगे कि हम दूसरे की भाषाओं को भी सीखने का प्रयास करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही आज के लिए क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं आप सभी को पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। धन्यवाद सर। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें हम सभी भाषाओं को सीखना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए। मैं अभी ही कार्यक्रम के आरंभ करने से पहले बहन श्रीदेवी जी, डॉक्टर श्रीदेवी जी से कह रहा था, जो सलोनी जी हैं, इन्होंने मेरी एक पुस्तक का संपादन करने के लिए स्वीकृति दी और उन्होंने संपादन भी कर दिया है। वो तमिल में मैंने लिखने का प्रयास किया, कुछ-कुछ मैंने तो केवल पुस्तकों से सीखी थी भाषा, तो कुछ टूटी-फूटी भाषा थी, तो उन्होंने उसको संपादित किया, उसको ठीक कर दिया है। अब केवल सब जो चित्र हैं वो अलग-अलग जगहों पर चले गए हैं, उसको ठीक करके छपाना है। इस प्रयास से हम एक भाषा से दूसरी भाषा तक हमारे भाव को हम पहुँचा सकते हैं, दूसरी भाषा की भावों को अपनी भाषा में ला सकते हैं। तो इस के प्रकार के आदान-प्रदान से जो सहृदयता की भावना पनपेगी, उससे किसी भी इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पूरे राष्ट्र में, हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में एक एकता की भावना झलकेगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर पीयूष रंजन जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। डॉक्टर पीयूष रंजन जी। लगता है नहीं जुड़ पाए हैं। नहीं जुड़ पाए क्योंकि नाम ठीक से नहीं दिख पा रहा है सर। तो मैं डॉक्टर विवेक बादल बाजपुरी जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ये हमारे बहुत गहरे मित्र हैं। ये इनसे लगभग 3 साल से इनके कार्यक्रमों में जुड़ा हुआ है, बहुत बड़े और अच्छे कवि हैं। इनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आज हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर विवेक बादल बाजपुरी जी। विवेक जी? निकल गए शायद सर।
तो आगे के क्रम को हम जारी रखते हुए श्रीमती रेणु चमन जी को वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए, हिंदी भाषा या फिर मॉरिशस में किसी भी भाषा में जो बोली जाती है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। सभी को धन्यवाद, नमस्ते, सहृदय अभिवादन। मैं रेणुका चमन मॉरिशस से हूँ और आज के इस महत्व विषय पर, जो कि अनेक भाषाएं लेकिन भाव एक, इस पर मैं अपना कुछ विचार दूंगी। तो बस मैं अपने देश में जो भी भाषाएं उनके बारे में कुछ बोलूंगी। वैसे मॉरिशस में अनेक जातियों के लोग बसते हैं और विविधता यह है कि विभिन्न या कई तरह की चीजों को मानना, जैसे संस्कृतियों, भाषाएं, विचार और प्रजातियों, और हर वर्गों में भाषा बोली बदल जाती है, भाषा और बोलियां बदल जाती हैं। यहाँ पर कई भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं जो हमारी विकसित सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। भाषाएं भले ही सुनने में अलग लगती हो, लेकिन इन सब के पीछे एक ही भावना है। भाषा तो बोलचाल का एक ऐसा साधन है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी खुशी, प्रेम, दुख, सुख या क्रोध को व्यक्त कर सकता है, और यही करवा सच है। उदाहरण तौर पर एक माँ अपने बच्चे के प्रति किसी भी भाषा में अपना प्यार जता सकती है, पर उसका सार वही रहता है, निस्वार्थ और गहरा। वैसे ही अनेक भाषाएं होने के बावजूद हम एक ही देश के नागरिक हैं और हमारी राष्ट्रीय पहचान को जोड़ती है। अंत में यही कहूंगी कि जब भी देश की बात आती है तो भाषा की दीवारें गिर जाती हैं और एकता की भावना तेज हो जाती है। हमारे विचारों को भाषाओं में व्यक्त करने के लिए भले ही अनेक तरीके हो, लेकिन हमारी आत्मा और भावना एक ही है, और यही अनेकता में एकता देश की सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रेणु जी। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में अतिथि उपस्थित डॉक्टर राजशेखर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप मॉरिशस के महात्मा गांधी संस्थान में ICCR चेयर हैं। आप यहाँ पर हिंदी भाषा के साथ साथ हिंदी साहित्य की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आपकी हाल में छपी पुस्तक डोडो एवं अन्य कहानियां इसका जीवंत प्रमाण है। आपको महाकवि सुब्रमण्य भारती पर अपने विचार रखने के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार सभी लोगों को, और आपका बहुत बहुत आभार सोमदत्त काशीनाथ जी, जो हमारे मित्र हैं मॉरिशस के, और सभी साहित्यिक चर्चा में उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिलता है। सुब्रमण्यम भारती से थोड़ा मेरा भी गहरा लगा हो गया जब से मैं तमिलनाडु में रहना शुरू किया। मैं लोयला कॉलेज में प्रोफेसर हूँ हिंदी का, और उसके बाद यहाँ मॉरिशस में 2 साल से मैं ICCR चेयर के पद पर हूँ, और वहाँ के बच्चों को हिंदी पढ़ाने का जब मौका मिला, तब मुझे सुब्रमण्यम भारती जी की कुछ बातें समझ में आई कि वे क्यों कहते थे कि मातृभाषा बहुत जरूरी है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी मातृभाषा पर जोर दिया गया। हम सभी को पता है कि 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की जो है स्थापना हुई, और गांधी जी के नेतृत्व में। और मुझे कई बार लगता है कि वह तभी संभव हो पाया और इतने सारे हिंदी प्रचारक तभी बन पाए, उसकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं सुब्रमण्यम भारती जी थे। उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। सुब्रमण्यम भारती जी केवल एक कवि नहीं थे,
बल्कि एक दूरदृष्टा भी थे। गांधी जी जब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अंग्रेज अंग्रेज की जो अंग्रेजी भाषा है और उसकी जो संस्कृति है, उसके खिलाफ, उसके आमने सामने हम कौन सी भाषा को प्रस्तुत करें। क्योंकि अंग्रेज हमेशा यह दबाव डालते थे कि आपके पास तो कोई एक भाषा है नहीं, आपकी कौन सी प्रतिनिधि भाषा के रूप में आप मेरे सामने आएंगे। तो चाहे वो गांधी जी हों या बाल गंगाधर तिलक हों या कोई भी हो या सुब्रमण्यम भारती जी हों, आप देखेंगे उन अलग अलग प्रांत के लोगों ने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को चुना। उसके जो भी कारण रहे हों, गांधी जी कहते थे कि हम सभी उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत की एक भाषा सीखनी चाहिए और दक्षिण भारत के लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए। तो ये सब केवल एक महान व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि एक दूरदृष्टा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता और हम लोग जो है उन पर विचार विमर्श, यानी उनके जीवन को हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। क्योंकि 1857 की जो लड़ाई हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, यदि उसको भी हम ध्यान में रखें तो हम उस समय जीत सकते थे, लेकिन हम उस समय इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि पूरा भारत एक साथ नहीं था। न चाहते हुए भी हमें हार का सामना करना पड़ा। यानी जो हमारी संस्कृति एक थी, लेकिन ये जो भाषाई विविधता थी, अलग अलग जो प्रांत थे, तो वे एक संस्कृति के अंतर्गत नहीं आ पा रहे थे। इसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। जब सुब्रमण्यम भारती बनारस आते हैं, वहां रहकर जब पढ़ाई करते हैं, तब उन्हें महसूस होता है कि कितना जरूरी है अनेकता में एकता का होना। तो जब ये महापुरुष इन सभी बातों पर जब विचार करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, हमसे पहले जिन लोगों ने उन पर बातें की, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की उनके व्यक्तित्व को लेकर। वे खुद अपने खर्च पर पाठशाला चलाते थे। हिंदी की पाठशाला उस समय चलाना बहुत बड़ी बात थी, कोई इतना भी आसान नहीं था। तो पूरे व्यक्तित्व को यदि हम लेकर देखें और उनको यदि हम जानना चाहें कि अलग अलग दृष्टिकोण से, तो इसमें जो अभी आप देख रहे हैं कि तमिल संगम केंद्र सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, कहीं न कहीं वहां पर हिंदी तमिल भाषाई समन्वय की शुरुआत जो है हमारे सुब्रमण्यम भारती जी ने ही कर दी थी। और भी एक रोचक बात है, जहां पर सुब्रमण्यम भारती जी रुकते हैं, वहां से जयशंकर प्रसाद शुरू होते हैं, है ना। क्योंकि अपने राष्ट्र के इतिहास के प्रति गौरव की भावना यदि किसी ने पैदा की तो सुब्रमण्यम भारती ने की, और उनके विचारों को लेकर जयशंकर प्रसाद फिर महान नाटक लिखते हैं जो सबको पता है, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, ध्रुव स्वामिनी हो, जिसमें स्त्री की भी स्वतंत्रता की बात है, राष्ट्र की स्वतंत्रता की भी बात है, और तमाम ऐसे जो जिस पर हम गौरव कर सकते हैं, उस गौरवशाली भारत की बात है। तो सुब्रमण्यम भारती जी ने इतनी कम उनकी अवस्था थी, आयु रही 40 साल की उम्र में, और जीवित रहते तो बहुत कुछ देखने को मिलता, और यदि वो स्वतंत्रता जो हमें मिली 1947 तक जीवित रहते तो बहुत कुछ उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा होता, और पता नहीं फिर क्या इतिहास रहा होता, ये तो बात की बात है। लेकिन उन्होंने
यह दिखाया कि जो भारत का इतिहास है, जो भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, जिसकी हम तुलना किसी भी विश्व के देश से नहीं कर सकते, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और हम सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के बराबर जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वह भी समतुल्य नहीं है, तो हम उसे तुलना नहीं कर सकते। तो सुब्रमण्यम भारती जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आप देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता की जो है बात की, और भाषाई समन्वय है ही, और दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार की नींव उन्होंने रखी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर हम आजकल मातृभाषा दिवस भी मना रहे हैं, जो उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे साथ और भी वक्ता जुड़े हुए हैं, वे भी अपनी अपनी बात अलग अलग ढंग से रखेंगे। तो सोमदत्त जी, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे जितने भी यहाँ वरिष्ठ जिन्होंने हमें हृदय से सुना, उनका भी बहुत बहुत आभार जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक छोटे से अल्पकाल की में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्वीकृति दे दी थी। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रजनी गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। मैंने देखा था कि वो आई हुई हैं, डॉक्टर रजनी गुप्ता ना, डॉक्टर विवेक बादल बाजपुरी जी। सर मुझे भी उनका बुला नाम लें, राजलक्ष्मी कृष्णन जी, चेन्नई से। आप मुख्य अतिथि हैं, ये एक वक्ता के बाद में आपको बुलाया जाएगा मैडम। 1 मिनट आप इंतजार कर लीजिए, 2 मिनट। हाँ, अब तो डॉक्टर CJ प्रसन्ना कुमारी जी को आमंत्रित करते हुए मैं कुछ शब्द कहूँगा कि आप केरल विश्वविद्यालय केरल में प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष पूर्व, हिंदी विभाग, सरकारी महिला कॉलेज तिरुवनंतपुरम में आप कार्यरत थी, और आपने अनुवाद, लेखन कार्य और कई सराहनीय कार्य किए हैं भाषा को लेकर। आपके विचार सुनने के लिए हम प्रस्तुत हैं मैडम, कृपया आप मंच पर उपस्थित होइए। सबका सादर प्रणाम। आज यहाँ अपने परिचितों को दोबारा मिलने का अवसर आभासी मंच से को मिला है। हरि सिंह पाल जी खैम आदरणीय, राजलक्ष्मी जी खैम, श्रीदेवी जी खैम, मुक्ता जी खैम, शारदा जी खैम, सब लोग मेरे परिचित हैं। सबका कि जो जिन्हें देखा नहीं, सबका सादर प्रणाम। अब तो आज भारतीय भाषा दिवस मनाए जा रहे हैं। हम श्री सुब्रमण्य भारती के जन्म दिवस को हम भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। केवल भारत में ही नहीं, पिछले साल मैं विदेश में थी, कैलिफोर्निया में, वहां भी इसी प्रकार बड़े बड़े स्कूलों के ऑडिटोरियम में ऐसे कार्यक्रम, भारती जी के कृतियों का नृत्याविष्कार हुआ था। कई कार्यक्रम वहां भी हुए थे। जगह भारतीय कहीं वहां सब कहीं ऐसा मनाया जाता है। आज का विषय है, आज इस भारतीय दिवस का विषय है भाषाएं अनेक, भाव अनेक। हम जानते हैं, मैं अपने केरल को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके बोलूंगी, क्योंकि केरल एक अरब सागर और सह्याद्री के बीच का सिमटा हुआ एक प्रदेश है। बाहरी दखल ज्यादा हुआ, बाहरी संस्कृति आ गई। फिर भी देखिए, हमारी जो भाषा, केरल की अपनी भाषा मलयालम है। मलयालम शायद 11वीं सदी के बाद उदित एक भाषा है। उस पर संस्कृत भाषा का और तमिल भाषा के शब्द खुल मिल गए हैं। एक साथ 2 प्रकार की भाषाएं चलती रही थी। एक केरल में, एक तो चंतमिल कहते हैं, दूसरा तो मणिप्रवाल। मलयालम और चंतमिल, ये दोनों भाषाएं थी एक जमाने में। एक चंतमिल में मलयालम शब्द थोड़ा और ज्यादा तमिल शब्द, और मणिप्रवाल में संस्कृत शब्द ज्यादा
और थोड़ा मलयालम शब्द, ऐसी दो भाषाएं समांतर रूप से चल रही थी। और अंत में 13वीं 14वीं सदी आकर तो आज के प्रौढ़ मलयालम का उदय हुआ था। माने दो भाषाओं से, तमिल और संस्कृत से ही मलयालम नामक एक हमारी नई भाषा का उदय हुआ था। लेकिन साहित्य में वो ज्यादा संपन्न है। हमारे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक मिले हैं 25 शायद, उनमें 6 केरल के पक्ष में आए हैं, मलयालम के पक्ष में आए हैं। भाषा नई है, हमारी भाषा नहीं है, लेकिन साहित्य जो है उत्कृष्ट ऐसा कहा जाना चाहिए, क्योंकि 6 ज्यादा ज्ञानपीठ इसके पक्ष में आ गए हैं। और भाव और भाषा के संबंध में यही है कि हम पुराने जमाने से ले लें, केरल भी ऐसे सेपरेटेड या सिमटा प्रदेश था, तो भी हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति का प्रभाव केरल पर ज्यादा पड़ा। केरल में ही नहीं, उदाहरण के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगी। संस्कृत में रामायण का, वाल्मीकि जी ने रामायण, आदिकवि ने रामायण लिखा, और एक तो 200 या 150 वर्ष के अंदर, इस अंतराल में, इस छोटे से अंतराल में भारत के सारी की सारी अक्सर भाषाओं में रामायण रचे गए। जहां भी हो, या भाव एक ही है। भारत जहां जहां भारत के भाषाएं सारे अनेक हो, हम एक ही बात या सभी भाषाओं में आते रहते हैं। पुराने जमाने से ही ऐसा था। लेकिन आदि रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखा, उसी का केरल में एഴുത്തച്ഛൻ ने लिखा। और उसके पहले, ज्यादा पहले कंब रामायण, तमिल में रामायण का उदय हुआ। कंब रामायण उससे पुराना है। और रंगनाथ रामायण तमिल तेलुगु में हुआ, कृतिवास रामायण हुआ। और इस प्रकार सबकी रामायण सारे के भारत के सारी की सारी भाषाओं में ऐसा उदित हुआ। यानी हम भारतीय जहां भी हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी वेशभूषा अलग है, भाषा अलग अलग है, तो भी हमारी संस्कृति एक है। उससे जुड़े हुए हैं हम सब। ऐसा एक सूत्र है हमें जुड़ाने का। अभी हमारे आज के त्रिभाषा सूत्र के संबंध में हम किसी ने जिक्र किया कि भारतीय भाषाओं में या हमारे संविधान लागू हुआ तो हम त्रिभाषा सूत्र नामक एक प्रस्ताव रखा था। हमने उत्तर भारत में एक दक्षिण हिंदी और मातृभाषा के साथ दक्षिण की एक भाषा, और दक्षिण में हिंदी मातृभाषा और अंग्रेजी, ऐसा एक त्रिभाषा सूत्र चल रहा था। और इसी प्रकार हमारी भाषाई एकता को मजबूत बनाने के लिए शायद ऐसे कार्यक्रमों का सृजन किया होगा। जो भी हो, हम भाषा के जरिए शायद अलग अलग हो, अपनी संस्कृति के जरिए हम एक ही है। या इस समय में हमारे यहाँ केरल के एक महाकवि हैं, जिन्होंने आप सब जानते हैं, कथकली केरल की शास्त्रीय कला है सबसे मशहूर। ऐसी शास्त्रीय कला को विश्व मंच प्रदान करने वाले हिंदी के केरल के महाकवि हैं वल्लतोल नारायण मेनन। या उन्होंने भाषा के संबंध में उन्होंने ऐसा कहा है, മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ केवलम धात्रिमार मर्तिन्न तन भाषा पेट्टम्मा तान। मनुष्य के लिए अपनी मातृभाषा मां जैसी है और अन्य भाषाएं धात्री जैसी हैं, ऐसा वे बताते हैं। जो भी हो, हमें सभी भारत के सभी भाषाओं को सीख सके तो हम सीख ले, या यही मेरी राय है। या और सभी संस्कृतियों से अब तकनीकी रूप से हम सभी भाषाओं को सीख सकते हैं इतनी मुसीबत के बिना, क्योंकि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे या टेक्नोलॉजी के सहारे हम सभी भाषाएं सीखने का एक अवसर हमारे पास है। तो भी सभी भाषाएं सीख सके तो उसके अंदर तक घुसने की या उसके अंतरात्मा को पहचानने की क्षमता हमें मिलेगी। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना चंद शब्द समाप्त करती हूँ। जो अवसर मुझे दिया है इसके लिए धन्यवाद अदा करती हुई मैं विराम लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत उत्तम विचार हमारे सामने रखे हैं। अब
हम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी को आमंत्रित करते हैं कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। उनके स्वागत के लिए मैं बहन श्रीदेवी जी को बुलाऊंगा कि वे उनके विषय में कुछ शब्द कहें। नंदी। राजलक्ष्मी मैम का हार्दिक स्वागत है। मैम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। जहाँ तक मैं मानती हूँ हर औरतों के लिए मैम जो है प्रेरणा स्रोत रही हैं। मैम काफी कुछ उन्होंने अनुवाद लेखन का काम किया है। कई जगहों से मैम ने अपने जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ से भी उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। हाल ही में उन्होंने अपने जो गृह मंत्री अमित शाह जी उनसे भी पुरस्कार सम्मान प्राप्त किया है। और तमिलनाडु के गवर्नर जो हमारे आर.एन. रवि हैं उनसे भी मैम ने 2 बार मैम को सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो ऐसी एक हस्ती आज हमारे बीच उपस्थित है। मैम आपका दिल से स्वागत है। हेलो विवेक जी आप बहुत धन्यवाद। आप मेरे को ही बुला रही हैं, राजलक्ष्मी कृष्णन को। यस मैम, राजलक्ष्मी मैम का स्वागत है, दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज का विषय भी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। और हम सब सुब्रमण्यम भारती की जयंती बना रहे हैं, जन्म जयंती मना रहे हैं। बहुत श्री प्रसन्ना का भी बहुत अच्छा स्पीच था। जितने भी वक्ता उन्होंने भाषण दिया बहुत बढ़िया रहा। और सबसे पहले मैं झारखंड की शारदा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और नागरी लिपि परिषद के महामंत्री हरसिंह पाल जी का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगी, थोड़ा सा ही बोलूंगी। जैसा आप सभी ने कहा है कि सभी को सबसे पहले मैं वणक्कम बोलती हूँ, नमस्कार और वणक्कम। और सभी को सभी विद्वत जनों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी लोगों को। और डॉक्टर शारदा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। और जी झारखंड के लोगों से मुझे मिलने का सुअवसर मिला पर जी हार्दिक धन्यवाद। जैसा आप सभी जानते हैं कि सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के राष्ट्रीय कवि हैं। उन्होंने भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए आजन्म अथक परिश्रम किया। भारती ने कविता से भी प्रेम किया था। राष्ट्रीय कविता करना लिखना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे और उनका मुख्य उद्देश्य जो था अपनी रचनाओं के द्वारा भारतीयों को जागृत करना और किसी न किसी तरह भारत को आजाद करना, यही उनका प्रमुख लक्ष्य था। इसके लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। वे भारतीयों को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करना चाहते थे और जातिगत भेदभाव का कि ये जाति है वो जाति, इसका भी उन्होंने काफी विरोध किया। इसमें वो बोलते हैं, एक जगह पर बोलते हैं, बहुत सुंदर कविताएं करते थे। और विषय के बारे में मैंने कहा जैसे कि उनको सभी भाषाओं से प्रेम था। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि 17 वर्ष की आयु में उन्होंने लगभग 17 भाषाएं सीख ली थी। 17 भाषाएं वे बोल सकते थे। और यह अवश्य बात जरूर महत्वपूर्ण बात है कि यदि वे और रहते तो पता नहीं और कितना काम करते। केवल वे उनकी आयु जो थी 39 वर्ष तक ही थी, वे तब तक ही जीवित थे। तो इस उतने कम समय पर उन्होंने बहुत अधिक काम किया। उनका कहना था कि सभी भाषाएं हमें सीखनी चाहिए, तभी हमारा मस्तिष्क विकास होगा। और स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं की। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों पर भी करारा प्रहार किया। वो कहते थे एल्लोरुम उर्कुलम, एल्लोरुम उर्कुलम, एल्लोरुम इंडिया मक्कल, एल्लोरुम इन नाटु मन्नर। माने बोलते हुए हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, हम सब इस देश के वासी हैं। दक्षिण भारत में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो सुब्रमण्यम भारती को नहीं जानता हो, उनके नाम से परिचित ना हो। वे तिरुनेलवेली में एट्टापुरम नामक गांव में 11 दिसंबर 1882 को उनका जन्म हुआ। और बचपन से ही वे पढ़ने लिखने में बहुत अधिक तेज थे। परंतु जब 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया और इसी दुख के कारण उनके हृदय से कविता की धारा बह निकली। और 7 वर्ष की आयु में ही वे कविताएं लिखने लगे और 11 वर्ष की आयु में एक बहुत प्रसिद्ध कवि बन गए। तमिल विद्वान मु वरदराजन के शब्दों में तमिल साहित्य के इतिहास में नया जागरण काल भारती के द्वारा ही आरंभ हुआ
और इस आंदोलन में वे अगुआ बनकर चल रहे थे। भारतीदासन जो थे भारती के शिष्य थे। भारतीदासन भारती के दिखाए गए मार्ग पर चलकर अनेक सुंदर कल्पना और अपनी रचनाओं का माध्यम से प्रकट करने में समर्थ हुए। भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार देखकर उनका खून खौलने लगता था और स्वभाव से ही वे क्रांतिकारी थे। उन्होंने देशवासियों को जगाने के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी। 1907 में उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह स्वदेश गीत प्रकाशित किया। तब से वे राष्ट्र कवि माने जाने लगे। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीर नीरज मंडितम रमते न मराल मानस मानस मिना, अर्थात यद्यपि हर कहीं जल की शोभा बढ़ाने वाले कमल खिले हुए हैं, परंतु हंस पंक्षी का मन जो रहता है वह मान सरोवर में ही रहता है, क्योंकि वही उसकी जन्मभूमि है। तमिल साहित्य जो है वह भारती जी की ही देन है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा ही बोलना चाहती हूँ। और उन्होंने यह भी कहा अपने गीतों में, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की प्राचीनता और श्रेष्ठता इन गीतों के द्वारा प्रकट होता है कि आदि मानव जो है तमिल ही है और उनकी भाषा जो है तमिल अमृत ही है। प्राचीन विश्वों का नैतिक आदर्श भी तमिलनाडु ने ही पहले पहल रचा था। इन गीतों से तमिलनाडु की राष्ट्रीयता चरम सीमा तक पहुंच जाती है। भारती की हर सांस में देश मुक्ति की प्रबल कामना है, फिर भी राष्ट्र मुक्ति में बाधा बनकर रहने वालों से और जाति पाति को तोड़ने से वे कभी डरते नहीं थे। उनका दृढ़ विश्वास था यदि भारतवासी एक होकर अंग्रेजों का विरोध करें हमें हमेशा सफलता ही मिलेगी। सुनाई नहीं दे रहा, शायद बीच में बहुत ट्रबल हो रहा। वे कहते थे कि यदि भारतवासी एकत्रित हो जाएं और अंग्रेजी शासन का विरोध करें तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। वंदे मातरम से शुरू होने वाले अपने इस गीत में वे गर्जन करके गाते हुए कहते हैं, जाति भेदों पर ध्यान न देंगे ऊंचे, इस देश में जन्म लेने पर, इस देश में जन्म लेने पर ब्राह्मण हो या अन्य जाति वाले हो, सब एक ही बराबर है, सब एक ही बराबर है। 30 करोड़ जनता का यह संघ, सबके लिए समता का यह मंच, अतुलनीय एक समाज है, यह संसार के लिए नया होगा, जीवित रहे भारत समाज, जीवित रहे। और उसके बाद आज के जैसे समाज में आप देखते हैं कि बच्चे लोग जो हैं हमेशा अपना मतलब मोबाइल देखते रहते हैं और दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कहता मोबाइल देखना जो पहले के समय में तो इतना नहीं था, परंतु अब तो लोग बच्चे देखते हैं। तो उसके लिए बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखा था, ओडी विलियाडम पापा। मैंने वो बोलते हैं कि हमको दौड़ दौड़ के काम करना चाहिए, बिना दौड़े हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी कविता मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी सभी विद्वज्जन लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। छोटी सी कविता से बोल रही हूँ, वैसे बहुत बड़ी कविता है पर मैं 4-5 लाइन में ही बोलूंगी। ओडी विलियाडु पापा नी ओइंदी इरुक्कलागादु पापा, கூடி விளையாடு पापा और कुழந்தையையும் வெய்யாத पापा। माने हम बच्चों से बोलते हैं कि हम सब बच्चों को मिलजुल कर खेलना चाहिए, मिलजुल कर पढ़ना चाहिए और किसी से भी कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे दौड़ दौड़ कर कार्य करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो उनका मतलब भविष्य अच्छा हो सकता है और वे भी राष्ट्र की एकता में कुछ कार्य कर सकते हैं। तो बोलते काली एरुंद उड़न படிப்பு பின் கனிவு கொடுக்கும் நல்ல पाठ। मैंने बोलते सुबह उठते ही साथ बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद में कुछ सुंदर सुंदर कविताएं भी पढ़नी चाहिए, मीठे मीठे कविताएं भी, गीत भी गाना चाहिए, तभी उन लोगों के स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। यदि वे चुपचाप बैठे रहेंगे और केवल मोबाइल देखते रहेंगे तो कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो उसके बाद में वे मतलब हमेशा सोचते थे कि हमको मतलब हमारा भारत स्वतंत्र हो, भारत स्वतंत्र हो। तो वे भविष्य दृष्टा भी थे। मैंने उनको बहुत पहले ही अपने जीवन काल में मैंने स्वतंत्रता तो 1947 में मिला, पर उनके पहले ही उनको मालूम हो गया था कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। 20 साल पहले ही उनको मालूम हो गया था, क्योंकि भविष्यवाणी करते थे। तो बोलते कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, आओ हम सब मिलकर नाचें गावें और खुशियां मनाएं। उसके लिए वो बोलते हैं, आडुवो में पल्लू पाडुवो में
आनंद स्वतंत्रता अड़ेंदी बिट्टो माने हमने स्वतंत्रता हमें मिल गई है, आओ हम सब मिलकर नाचें गाएं, आड़ुओं में पल्लू पाड़ुओं में। पहले ही मालूम था जिस प्रकार से गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कार्य किया, परंतु अंत में वे मतलब उनको उनको माने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसी प्रकार से ये भी मतलब ये 39 ईयर्स ही जीवित रहे, 39 तक, पर एक हाथी के कुचलने से उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्हें यद्यपि वो बहुत पहले देख चुके थे कि हमारे भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी है, परंतु जल्दी उनकी मृत्यु होने के कारण से वे स्वतंत्रता को नहीं देख सके। इसका हमें बहुत ही दुख है। यदि वे और थोड़े समय तक जीवित रहते तो पता नहीं और देश के लिए क्या क्या करते। उन्होंने नारियों के उत्थान के लिए भी बहुत कुछ कहा है और बच्चों के उत्थान के लिए भी, सभी के उत्थान के लिए, और नीच जाति के लिए, जाति पात का वे हमेशा विरोध करते थे। बोलते थे कि ये सभी के लिए एक ही है, सब मतलब जो हमारा भारत है, हमारा भारत जो सबका एक ही है। और हमारी भाषाएं भी है, जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं, यद्यपि हमें बोलने में कठिनाई होती है, परंतु हमें अधिक से अधिक भाषाओं को सीखना जरूरी है। जिस प्रकार से वे 17 वर्ष की अवस्था में ही उनको 17 भाषाएं आती थी, तो बोलते इससे वे भाषाओं के सीखने से राष्ट्रीय एकता कायम हो सकती है। उसी प्रकार से भी एक और जगह कहते हैं कि व्यक्ति मानव के लिए केवल खाना ही नहीं, सारे जगत का हम नाश कर सकते हैं। भारती केवल 39 वर्ष की जीवित रहे और इस लघु अवधि में उन्होंने अनेक राष्ट्रीय गीत और लघु काव्यों की रचना की। भारतीय देश के राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय भागीदार थे, वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वार्थ रहित होकर उन्होंने देश और देशवासियों की सेवा की। हिंदी कवियों की तरह उन्होंने भी भारत के गौरवगान और विशेष रूप से हमारे पूर्वजों के ज्ञान और दर्शन की महत्ता का विशेष गुणगान उन्होंने किया है। उन्होंने भारती ने सरल बोलचाल की भाषा को अपनाया, इस कारण वे तमिलनाडु के लोकप्रिय राष्ट्र कवि बन गए। भारती ने गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, गुरु नानक आदि पर स्वतंत्र रूप से कविताएं लिखी हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने लोगों को गर्व और आत्मसम्मान के साथ जीने का संदेश दिया। भारत माता के प्रति उनके मन में असीम श्रद्धा और प्रेम का भाव था। इस कविता को पढ़कर हमारे मन में भी मातृभूमि के प्रति प्रेम का भाव उजागर होता है। उज्जवल हिमगिरी श्रृंग हमारा, विश्व भार में यह है न्यारा, सुधामयी गंगा हमारी, इसका न कोई सानी रहे। इस प्रकार से उन्होंने देश के राष्ट्रीय एकता के लिए और भारत में अंग्रेजों को भगाने के लिए राष्ट्रीय बहुत अधिक काम किया। मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लेना चाहती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जय भारत, जय भारती। धन्यवाद। आप सभी बहुत को बहुत मेरा धन्यवाद। आशीर्वाद और सभी को मेरा स्नेह, और आप लोग दिनों दिन इसी प्रकार से उन्नति करें, यही मेरी आशा है। और अधिक से अधिक भाषाएं सीखने का प्रयत्न करें। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में रहकर आप लोग हिंदी अच्छी तरह से बोलते हैं, उसी प्रकार से मैं चाहती हूँ कि आप लोग तमिलनाडु में भी आकर तमिल अच्छी तरह से बोले और अच्छी तरह से सीखें। धन्यवाद। सीखने का प्रयास कर रहे हैं मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैं अब डॉक्टर विवेक बादल वाजपुरी जी को आमंत्रित करता हूं 2 मिनट में अपने विचार व्यक्त करने के लिए, और उनके बाद हेमा जोशी जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आप बुलंदी साहित्य के कर्ता धर्ता हैं और कई कार्यक्रम ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करते रहते हैं। इस मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सोमदत्त जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को सुन करके। मैं बहुत देर से सुन रहा था और बहुत ही सुंदर आयोजन, और आज के सफल आयोजन हेतु आप सभी को शुभकामनाएं। मैं कुमाऊनी भाषा से आप सभी को नमन करता हूं। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, प्रिय भाषा प्रेमियों, आप सभी को नमस्कार। मैं बादल वाजपुरी, उत्तराखंड देवभूमि से। आज हम सब यहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती पर एकत्रित हैं। वे कवि जिनकी कविता केवल शब्द नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता की हुंकार, नारी सम्मान की घोषणा और मानव समानता का मंत्र थी। आज एक भारतीय भाषा महोत्सव में मुझे कुमाऊनी भाषा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला है। कुमाऊनी भी भारत की तमिल की तरह
भारतीय की गंध से जन्मी भाषा है, जो पहाड़ की चट्टानों, नदियों की कलकल और लोक जीवन के सुख दुख से बनी है। सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं, अश्मिल्य अश्मिल्य अर्थात मुझे भय नहीं है। कुमाऊनी में हम कहते हैं, डर नी छम हिम्मत छ। यही शब्दों की आत्मा, न डर, न गुलामी, न भेदभाव। भारती जी ने कहा कि स्त्री दासी नहीं है, शक्ति है। कुमाऊनी लोग भी कहता है कि नारी घर की चौखट नहीं, घर की ज्योति है। भारती जी का भारतीय साहित्य में जो योगदान है, भाषाओं का भारत के प्रति, तमिल, कुमाऊनी, भोजपुरी, मराठी, उर्दू सब मिलकर एक सांस्कृतिक इंद्रधनुष बनते हैं। और आज इस मंच से कुमाऊनी भाषा के माध्यम से मैं आप सभी की उपस्थिति को भी नमन करता हूं। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को नमन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, हमें भारत के इस भाषा के बारे में बताया जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अब मैं डॉक्टर हेमा जोशी जी को आमंत्रित करता हूं। आप विश्वविद्यालय पांडिचेरी में प्रोफेसर हैं, हिंदी पढ़ाती हैं वहां पर। कृपया अपने कुछ विचार व्यक्त कीजिए मैडम। डॉक्टर हेमा जोशी जी। जी, नमस्कार सर। तो बहुत आप नमस्कार सभी मैडम। को जी, आप सभी को मेरा प्रणाम, और जितने भी विद्वज्जन यहाँ उपस्थित है सभी को मेरा प्रणाम और सादर वंदन। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है। तो आज सुब्रमण्यम भारती जी जो तमिल के महाकवि रहे हैं, उनकी जयंती आप मना रहे हैं। तो ऐसी कई सारी जानकारियां हैं जो नहीं होती हैं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। तो बहुत ही विद्वज्जन यहाँ पे अभी जितने भी उपस्थित विद्वज्जन वक्ताओं ने बोला, तो कुछ न कुछ नई बातें जानने को मिली, सीखने को मिली। तो इस बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और जैसे कि आदरणीय बादल भाई जी भी जुड़े हैं, जिन्होंने कुमाऊनी भाषा को भी इस मंच पे रखा। तो जैसे कि हमारी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वो सभी हमारा गौरव है। तो केवल एक भाषा को लेकर नहीं, सभी भारतीय भाषाओं को लेकर के जब हम सब साथ चलेंगे, सब साथ काम करेंगे, तो भारती जी, जो सुब्रमण्यम भारती जी की जो लक्ष्य था कविता का, जो उनके जो देश भक्ति का जो जज्बा उनके मन में था, वो तभी संपूर्ण हो पाएगा जब हम अपनी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं इनमें अपना प्रेम, अपना सौहार्द बनाकर रखें और सभी भारतीय भाषाओं को सीखने का अथक प्रयास करें। मैं भी एक छोटा सा प्रयास यहाँ तमिलनाडु में रहकर करती हूँ तमिल भाषा, लेकिन ये है कि थोड़ा कठिन लगती है, लेकिन कुछ कुछ शब्द मैं डेली सीखने का प्रयास करती हूँ कि इस भाषा को सीखा जा सके। और भारती जी को पढ़ना तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अभी डॉक्टर राजलक्ष्मी जी ने बहुत ही विस्तार में उनके संदर्भ में बात कही। तो मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि इतना सुंदर मंच आप लोगों ने, इतनी सुंदर जानकारियां इसके माध्यम से प्रस्तुत की। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विराम लेती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार मैडम। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को आमंत्रित करूंगा। उनके स्वागत के लिए मैं प्रथमतः डॉक्टर साधा प्रसाद जी को बुलाऊंगा। वे डॉक्टर हरि सिंह पाल जी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ परिचय देंगी। स्वागत है आपका मंच पर दीदी। नमस्कार। आज का यह मंच, यह कार्यक्रम अपनी अबाध गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमारे समस्त विद्वज्जनों ने बहुत ही सुंदर अपने विचारों को व्यक्त किया है और भाषा जो हमारे प्राण तत्व होते हैं उनकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है, उसकी महत्ता को रेखांकित किया है। हम सब आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर आदरणीय हरि सिंह पाल जी का स्वागत करते हैं। और मैं हरि सिंह पाल जी के विषय में चंद पंक्तियां जो मैंने अभी अभी लिखी है मैं कहना चाहूंगी। भारत माँ के सपूत कर्मठ ऊर्जस्वी हरि सिंह पाल, भारत माँ के सपूत कर्मठ ऊर्जस्वी हरि सिंह पाल, माँ नागरी धन्य हुई पाकर ऐसा लाल। विश्व भाषा के रूप में फैली नागरी आज, इसकी ध्वजा फहरे सदा,
हो सदा हमें इस पर नाज, हो सदा हमें इस पर नाज। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी के नेतृत्व में आज नागरी भाषा देश की सीमा पार करके विश्व भर में अपना परचम लहरा रही है। और मैं यह कहूंगी कि डॉक्टर हरि सिंह पाल कर्मठ युवा नागरिक के योद्धा है और इनके कार्यकाल में नागरी लिपि अपना विस्तार पा रही है और हम सबके प्रेरणा स्रोत है। ये हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं इस मंच पर इनका हृदय से स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है हरि सिंह पाल जी। अभिनंदन। धन्यवाद जोहार। डॉक्टर शारदा जी। धन्यवाद डॉक्टर शारदा जी। हमारे मित्र डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी और आप सब मित्र, वड़क्कम। आपका इस आभासी संगोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन और वंदन। भरतयार स्वर्णिम भारती के ऊपर बहुत से विद्वानों ने अपनी बात कह दी है। मैंने आज से 26 वर्ष पूर्व ये लेख लिखा था स्वर्णिम भारती पर और ये पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मुझे संयोग से आज मिल गया, ये आज मेरे काम में आ गया। तो मैं चूंकि आकाशवाणी में रहा तो आकाशवाणी से हम प्राय भारत के जितने सभी भाषाओं के जो महाकवि थे उनकी हम वाणियों को प्रसारित किया करते थे। तो उसमें स्वर्णिम भारती को खासतौर से मैंने स्थान दिया था जब हम सुबह का जो विचार बिंदु कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे कि उस महापुरुष के क्या विचार थे। तो स्वर्णिम भारती जैसा कि आप सब मित्रों ने बताया कि वो अल्पकाल में ही, अल्पायु में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था और उनकी काव्य प्रतिभा को देख के जो उनके मित्र थे वो उनको काल मेघम कहते थे। उनको काल मेघम की उपाधि दी थी कि वो मतलब उनमें ऐसी प्रतिभा है कि कविता को उन्होंने अपने आप स्थापित कर लिया है। शुरू में उनको अपने पैतृक स्थान एट्टायपुरम के जमींदार के यहाँ पर दरबार में कथावाचक के रूप में बुलाया, लेकिन चूंकि स्वर्णिम भारती स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति थे, वो जमींदार की जो पराधीनता थी उनको स्वीकार नहीं हुई और फिर बाद में वहां से वो मदुरई में आकर के उच्च विद्यालय में अस्थायी अध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य शुरू किया। और इसी बीच में उन्होंने स्वदेश मित्रण नाम का एक अखबार निकलता था, उसके सह संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया। और उसके बारे में, उनके बारे में कहा जाता था, जो स्वदेश मित्रम के संपादक थे, उन्होंने कहा कि भाई भारती जी आपकी भाषा आश्चर्यजनक है, आपके एक एक शब्द के लिए 1-1 लाख रुपया दिया जा सकता है, लेकिन खेद है कि मैं राजा भोज नहीं हूँ। ये उन्होंने कहा था जी.एस. अय्यर साहब ने। तो भारती जी को स्वामी विवेकानंद की धर्मपत्नी भगनी निवेदिता के वात्सल में आशीर्वाद मिले थे। भारती जी को निवेदिता में भारत माता ही नहीं, विश्व माता पराशक्ति के भी उनमें दर्शन हुए। भारती जी की पहली कृति जो 1908 में प्रकाशित हुई, गीतंगल, और उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा, स्वर्णिम भारती लिखते हैं उसकी भूमिका में, जिस प्रकार अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाकर आत्मज्ञान कराया, उसी प्रकार भारत माता का भव्य रूप दर्शाकर जिस मात्र हृदय भगनी निवेदिता ने मुझे देश के प्रति ममता का मांत्रिक उपदेश दिया है, उन्हीं के श्री चरणों में यह कृति समर्पित है। ये उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा समर्पण करते हुए। और भारती जी की जो पहली कविता थी तन्मय इरक्कल एकांत नृति, 1904 में विवेक भानु में प्रकाशित हुई थी। और बाद में उन्होंने एक तिरुमलाचार्य, एक वहाँ के धनी मानी व्यक्ति थे तमिलनाडु के, उनसे आर्थिक अनुदान लेकर के इंडिया नाम का तमिल पत्र साप्ताहिक शुरू किया। और उन्होंने, चूंकि राष्ट्रवादी चेतना के व्यक्ति थे, अंग्रेज के उस समय शासन था, अंग्रेजों ने उनको यह आज़ादी नहीं दी कि जो वो स्वदेश के बारे में या स्वाधीनता के बारे में लिखे। फलतः उनको उनका जो अखबार निकलता था इंडिया, उसको बंद करा दिया कि नहीं भाई, इसको आप बंद नहीं, इसको आप यहाँ नहीं निकाल सकते भारत में। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला स्वर्णिम भारती ने, तो उस समय पांडिचेरी में फ्रांस का आधिपत्य था, यानी फ्रांसीसी सरकार थी, वहां पर अंग्रेजों का राज नहीं चलता था। तो वहां तमिलनाडु से भारती जी पहुंचे हैं पांडिचेरी, और पांडिचेरी में जाकर के पुनः उन्होंने इंडिया अखबार शुरू किया और वहां से उसको लगातार निकलते रहे।
और सबसे बड़ी बात कि उनको भारतीय भाषाओं से बहुत प्रेम था। उन्होंने चूंकि उनका अध्ययन जो है काशी में हुआ, तो बहुत सी भाषाओं को इसीलिए वो सीख चुके। जैसे राजलक्ष्मी कृष्ण जी ने बताया कि वो 17 भाषाएं बोल और समझ लेते थे। तो इसीलिए थे चूंकि वो काशी में आके पढ़े और उनको ये सब कुछ का ज्ञान हो गया। तो साथ में जो इंडिया जब अखबार वो निकालते थे, इंडिया अखबार में एक पन्ना वो हिंदी में भी देते थे। नागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी में भी एक पन्ना उसमें प्रकाशित होता था। ये उनकी राष्ट्रीय भावना थी और इस राष्ट्रीय भावना से पूरा देश उद्वेलित था। उनको इसी रूप में सम्मानित करता था, इसीलिए उनको हम राष्ट्र कवि के रूप में, उपाधि के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में स्वर्ण भारती लिखते हैं, भारत माता एक ऐसी पराशक्ति है जिसमें दुखों को दूर करने की, करुणा से प्रेम को परिपूर्ण बनाने की, बंद आंखों को नए निखार से जगाने की, पतन को पराजित करने की और गगनांचल सबके लिए खुला रखने की अपार शक्ति है। उनके अनुसार भारत एक इसलिए महान है क्योंकि भारतवासी महान थे। यही उनकी काव्यार्थ भी यही है। छत्रपति शिवाजी पर लिखी उनकी कविता भारतवर्ष की इसी भव्यता का गुणगान करती है। उन्होंने लिखा, यह देश देवताओं और ऋषि मुनियों का देश है। अभाव के प्रभाव से, अज्ञान के अंधकार से एकदम मुक्त और एकांत ज्ञान भूमि है यह। गंगा, कालिंदी, नर्मदा, तुंगभद्रा इसे सजल सुफल बनाती हैं। झरने, झील, सरिता, सागर, पर्वत, दुर्ग यहाँ की गरिमा बढ़ाते हैं। मत भूलो कि तुम इसकी संतान हो। भारती जी के रोम रोम में माँ भारती की छवि समाई हुई थी। उनकी भारत समुदायम नामक आज कविता बहुत ही लोकप्रिय थी और वो भारती जी अपने लेखन में इतने व्यस्त रहते थे कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए और इसलिए वो बहुत कमजोर हो गई थी। जैसे कि राजलक्ष्मी ने बताया कि एक जो है पागल हाथी आ रहा था कहीं से चलता हुआ और वो स्वर्ण भारती रास्ते में जा रहे थे। उन हाथी ने उनको टक्कर मार दी, वो वहीं गिर गए और वहीं हृदयाघात से उनका देहांत 12 सितंबर 1921 को हो गया। मात्र 39 वर्ष की आयु का ये महान कवि हमारे बीच से चला गया। लेकिन जो उनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं के माध्यम से जो ज्ञान की रश्मियां भारत में फैलाई हैं, निश्चित रूप से जो स्वाधीनता हमें मिली है वो उनकी बहुत बड़ी देन है। उनकी कविताओं की बहुत बड़ी देन है, उनकी कृतियों की बहुत बड़ी देन है। उनको पढ़ करके ही तमिलनाडु के लोगों ने राष्ट्रीय एकता के तत्व को स्वीकार किया और स्वाधीनता के लिए कंधे से कंधा मिला करके सभी के साथ वो लड़े और स्वाधीनता आखिरकार प्राप्त कर ली। तो ये ऐसे महान कवि के लिए आज हम स्मरण कर रहे हैं। तो ये हमारा मंच आज धन्य सिद्ध हुआ है। हम नागरी लिपि परिषद के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं, यहाँ तक कि विश्व की सभी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। तमिल भी हमारी बहुत अच्छी भाषा है, तमिल लिपि भी बहुत अच्छी है। तमिल तो चूंकि 10,000 पुरानी भाषा है, एक शास्त्रीय भाषा है, तो इस रूप में और भी इसका सम्मान बढ़ जाता है। इस रूप में भारत की जितनी भाषाएं हैं, चाहे वो तेलुगु है, मलयालम है, असमी है, बंगला है, ओडिया है, जो भी भाषाएं सब हमारी सम्माननीय है। सबका हम सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखें, ज्यादा से ज्यादा लिपियां सीखें। यदि हम नागरी लिपि सीख लेंगे, नागरी लिपि में भी वो भाषाएं लिखी जाने लगेंगी, तो हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐसी राष्ट्रीय एकता की भावना नागरी लिपि परिषद स्थापित करने का प्रयास करती है। आप सब इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, इसके स्वयंसेवक हैं, आप इस सबके हेतु हैं। आपके कारणों से ही, आपके प्रयासों से ही नागरी लिपि परिषद आज ये कार्य कर रही है। आज ये हमारा कार्यक्रम जो यहाँ से मॉरिशस से हुआ है, तैयार हुआ है, डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी ने थोड़े ही समय में, मतलब 2 दिन के अंदर इसका तैयारी कर ली और सबको उसमें जुटा लिया। तो ये उनकी संगठन कौशल शक्ति है जिसके बल पर हम सबको जोड़ लिया है। तो मैं डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार के कार्यों से हम आचार्य विनोबा भावे की जो भावना है विश्व लिपि की, उसकी ओर हम अग्रसर हो सकते हैं और हम सब राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध करके मानव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे। आप इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में जुड़े। जितने वक्ताओं ने यहाँ पर बोला, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोला। सबका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन, और सबके प्रति मैं बधाई और शुभकामना देते हुए नमस्कार और शुभ रात्रि कहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मॉरिशस में भी
डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती जी की प्रासंगिकता है। यहाँ पर एक हमारा जो आँख का इलाज करने वाला हॉस्पिटल है, उसको डॉक्टर श्री सुब्रमण्यम भारती आई हॉस्पिटल के नाम पर रखा गया है। फिर हमारे जो महात्मा गांधी संस्थान है, जहाँ पर प्रोफेसर राजशेखर जी नियुक्त हैं, वहाँ पर जो सभागार हैं उसको सुब्रमण्यम भारती लेक्चर थिएटर कहा जाता है। तो उनकी प्रासंगिकता सभी ओर है। अब औपचारिक रूप से हमारा जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो उपस्थित हुए हैं 1-2 मिनट के लिए अपने विचार व्यक्त करें, जो भी कहना चाहें इस कार्यक्रम के बारे में या डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती के बारे में। आपका स्वागत है। पहले हम आरंभ करते हैं डॉक्टर रश्मि जी से। आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम? तो आपका स्वागत है मंच पर। नमस्कार सभी को। और कुछ नहीं, आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोगों की रिकॉर्डिंग कर ली है धन्यवाद। मैंने, तो भेज दूंगी। और कार्यक्रम बहुत अच्छा था। बस सभी से अनुरोध है, व्हाट्सएप पर नागरी लिपि का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर मोहन द्विवेदी जी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में या फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती के बारे में? जी, मैं अभी अभी जुड़ा हूँ। अभी मैं रास्ते में हूँ, गया जी के सर। रास्ते में हूँ मार्केट में। अभी मैंने व्हाट्सएप ऐसे अचानक खोला तो पाल साहब का जो है आया था मैसेज, तो मैंने जी खोल सर। के देखा। हमने कहा कि कम से कम आपको नमस्ते तक कर लूं। आप इतने दिन से जुड़े जी। हैं, आप सबका प्यार। मैं नागरी लिपि में हूँ और नागरी लिपि से हमारा काफी दिनों से बहुत लगाव रहा है। आप इतनी दूर से दुबई से और कहां से जुड़े हैं, तो आपका दर्शन पाना ही हमारा उद्देश्य था, इसलिए हमने जो है इसको ओपन किया। आप सबको बहुत बहुत बढ़िया लगा आपका। और सबको नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम? जी धन्यवाद आदरणीय। और आज जो संगोष्ठी रखा गया है, जिसमें नागरी लिपि परिषद मॉरिशस, झारखंड और सृजन मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के तत्वाधान में परम आदरणीय डॉक्टर हरिशिपाल जी को प्रणाम करते हुए भारतीय भाषाओं का महोत्सव भाषा नेक भाव, जो कि कवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और भारतीय भाषाओं के उत्सव के बारे में अगर मैं कहूँ तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में विभिन्न भाषाओं के सम्मान में मनाने के लिए यह उत्सव किया जाता है, जिसका उद्देश्य न केवल छात्रों और कर्मचारियों के बीच मातृभाषा के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना है, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के बीच आपसी सद्भाव को मनाना है। तो जो कवि रहे हैं आदरणीय सुब्रमण्यम भारती जी की जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है, उनको सत सत नमन करती हूँ। पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। आज छत्तीसगढ़ में भी सभी जाति संप्रदाय को एक समान मानने वाले जो हैं, उनका भी आज जन्म दिवस है और उनको संत गुरु घासीदास जयंती आज यहाँ भी है, जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब का सम्मान करना और सभी को भाषाओं को एक लिपि के रूप में जो पिरोया जाता है, वो हमारे नागरी लिपि परिषद के अंतर्गत हरिपाल जी के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जुड़े हुए हैं। आप सभी को बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया, अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। श्रीमती अंजू पांचाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? सभी को नमस्कार मेरा। और इस आभासी मंच के माध्यम से जो नए नए विचारों की प्राप्ति हो रही है, इससे हमारी ज्ञान वृद्धि हो रही है। और डॉक्टर हरिपाल सिंह सर को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आगे भविष्य में भी ऐसे ही प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजित कराते रहें और हमारा ज्ञान वर्धन करते रहें। इस आज का जो विषय है भाषाएं अनेक भाव एक,
तो जब मैं ये संगोष्ठी सुन रही थी, आप सबके विचार सुन रही थी विद्वज्जनों के, तो मुझे जब मेरा बेटा 10th में था तो मैं उसको एक स्टोरी पढ़ा रही थी, हिंदी की किताब में थी वो, टोपी शुक्ला नाम से। तो उसमें यही भाव था उस कहानी का कि जो बच्चे होते हैं आपस में खेलते हैं, चाहे वो अलग अलग भाषा भाषी हों, किसी भी क्षेत्र से संबंधी हो, किसी भी जाति से संबंध रखते हों, लेकिन जो खेल की जो भाषा है, यानी जो हम भाव व्यक्त करना चाहते हैं, एक दूसरे को कहना चाहते हैं, उसके लिए भाषा कहीं भी आड़े नहीं आती है कि हम किस भाषा से बिलोंग करते हैं। और इस संदर्भ में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि जो हमारी नई पॉलिसी आई है NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषावाद और बहुसांस्कृतिवाद, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा NEP 2020 में रखी गई है। और इसको आगे बढ़ाते हुए, यानी हमारी जो राष्ट्रीय एकता है भाषाओं के माध्यम से, इस विचार को आगे बढ़ाते हुए आज की जो नई पॉलिसी आई है, बच्चों के सामने जो विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं, तो उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जो संविधान में जो 24 भाषाएं दी गई हैं, वो उनमें से किसी को भी ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं, और उनकी जो क्लासेस हैं वो क्लस्टर सेंटर के रूप में वो आयोजित विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएंगी। तो ये हमारा जो है प्रयास, जो भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का जो प्रयास है, ये इसके लिए जो है डॉक्टर हरिपाल सिंह सर को मैं एक बार फिर से जो है बधाई देना चाहूंगी, और अपने आप को जो है बहुत गरिमापूर्ण महसूस कर रही हूँ मैं कि मैं ऐसे ग्रुप से जुड़ी हूँ जिस पर अनेक ज्ञानवर्धन बातें और सबको बोलने का अवसर दिया जाता है, जिससे हम मोटिवेटेड होते हैं। और एक बार फिर से बधाइयाँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अनुज बरमूला जी, केवल एक मिनट में अपनी बात कहेंगे तो अच्छा होगा सर, ताकि सबको जी थोड़ा सर, सा मौका मिले। आप सभी विद्वजनों को मेरा सादर नमन। मैं बेसिकली वैसे उत्तराखंड देवभूमि से हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं बेंगलोर में हूँ। तो जी सर। हमारी जो मतलब आज विश्व भाषा दिवस के अवसर पर मुझे आप सभी के बीच अपने विचार रखने का यहाँ पे आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो विश्व मंच है यहाँ पर, इसमें मैं जैसे कि बहुत सारी भाषाएं हैं, तो मैं अपने भाषा का भी यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि जैसे उत्तराखंड में अभी एक भाषा का नाम आपने सुना, कुमाऊनी भाषा। तो एक वहाँ पे गढ़वाली भाषा है, तो जो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसी पर मैं 2 लाइन आपको वहाँ का एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, यदि आप अनुमति दे तो मैं 2 लाइन वो गाना आपको सुनाना चाहूंगा। तो वो गाना इस प्रकार से है। ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। हो 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 हो, हा 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 हा। ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर अपने विचार रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर श्री बाबला गढ़ेवाल जी, अगर आप कुछ विचार रखना चाहेंगे सर, आपका स्वागत है मंच पर। इनका नाम डॉक्टर रतिराम गढ़ेवाल है। डॉक्टर रतिराम गढ़ेवाल जी हैं यहाँ पर, उनका नाम तो दिख रहा है लिस्ट में, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है इसमें। ये हमारे दूरदर्शन से मोहम्मद इसहाक अली हैं, इनको बुला लीजिएगा। मोहम्मद इसहाक खान
डॉक्टर दूरदर्शन से। मोहम्मद इशाक खान जी, आपका मंच पर स्वागत है। 2-3 मिनट में अपने 1-2 मिनट में अपने विचार व्यक्त कर दीजिए सर। जी, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम। मुझे लिंक भेजते रहते हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, आपका हार्दिक आभार। आपका लिंक भेजना ही मेरे लिए आशीर्वाद होता है और आदेश भी होता है। तो जैसे जैसे समय मिलता है मैं जुड़ने की कोशिश करता हूं। अभी डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक सम्मान मिला है, जिसे इन्होंने पचा गए, कहीं उसे जो उजागर नहीं किया। तो उनका सम्मान नागरिक लिपि का सम्मान मैं समझता हूँ। भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इनका सम्मान हुआ था अभी 12 दिसंबर को, जिसका गवाह मैं भी बना। तो इसके लिए मैं आप सबको सूचित करना चाह रहा था। और जहां तक आदरणीय सुब्रमण्यम भारती जी का नाम है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। मैं इसी लाइन का व्यक्ति हूं, इसलिए उनको मैं नमन करता हूं और आप सबका हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हार्दिक आभार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर आशा प्रजापति जी, मैडम अगर आप कुछ शब्द कहेंगे तो हम कृतार्थ होंगे आपकी वाणी से। आशा जी बेंगलुरु में लेक्चरर हैं। जी मैडम, आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद सर, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जी मैडम। आवाज आ रही है सर? जी जी, अच्छी तरह आ रही है मैडम। आपका स्वागत है। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम सर। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ, तो अपनी मातृभाषा में खम्मा गणी खम्मा और बस इतना सा कहूंगी कि भाषाओं को लेकर जो आज हमने सभी के वक्तव्य सुने, वाकई लगा कि मैं भारत के कोने कोने में मैं बस रही हूँ और भारत हमारे दिल के कोने कोने में बस रहा है। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। श्रीमती फरहातुनिसा खान जी, अगर आप कुछ शब्द कहना चाहेंगी मैडम तो आपका स्वागत है। अभी काफी समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं हो कि आप एक कार्यक्रम में आए और आप कुछ बोल ना पाए, तो ये ठीक नहीं लगता है। फरहत जी विदिशा से हैं, मध्य प्रदेश से, और शिक्षिका हैं और कई इनको पुरस्कार मिले हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं शिक्षा के बहुत बहुत बधाई। फरहत जी सुनाइए। कहीं इधर उधर हो गई हूँ, कोई बात नहीं, आप औरों को बुलाएं। हाँ, 1-2 ही रह गए हैं। जितेंद्र कुमार पाल जी। जी धन्यवाद जी, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अच्छी तरह आ रही है। जी, इस कार्यक्रम के लिए मुझे हमेशा प्रोत्साहित करने वाले पिता तुल्य डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को श्रद्धेय नमन। मैं सभी से परिचित नहीं, पर ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा डॉक्टर साहब मुझे परिचित कराते रहते हैं और मैंने इनका काफी सानिध्य पाया है आकाशवाणी में भी, और इस समय मैं एक शिक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रहा हूं। मैं बहुत कुछ अभी नहीं बोलूंगा, अचानक मैं इसमें आया हूं, पर थोड़ा बहुत लिखता हूं तो 4 लाइनें में बोलूंगा। तत्व की ज्वालाओं में जलकर तपना सीखो, असफलता का आस्वादन करके भी हंसना सीखो, कर्मठता पर ना हो कोई बंधन, पकड़ कर कर्म की डोर लक्ष्य मार्ग पर चढ़ना सीखो, तत्व की ज्वालाओं में जलकर तपना सीखो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अंतिम वक्ता को बुलाते हैं 2 मिनट के लिए, श्री मनोज झा जी। सर आपका स्वागत है मंच पर, कुछ शब्द बोल दीजिएगा। मनोज झा जी उपस्थित हैं ना? शायद। तो
हम इस कार्यक्रम को विराम देने से पहले मैं डॉक्टर शारदा प्रसाद जी को आमंत्रित करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। उससे पहले मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगा। मोती देने आया हूँ, मैं सागर नहीं हूँ जो निधियों से भर जाऊंगा। एक दिन झोली तुम्हारी, मैं धरती भी नहीं जो अपने पीछे खनिज तुम्हारे लिए असंख्य छोड़ जाऊंगा। मैं मात्र एक सीपी हूँ जो तुम्हारे लिए कम से कम एक मोती छोड़ जाऊंगा। इसी प्रयास के साथ हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं सभी भाषाओं को जोड़ने के लिए, सभी अपना जितना हमने अब तक सीखा है उसको इस संसार में छोड़ जाने के लिए। वैसे मैं आप 1 मिनट लूँगा आप लोगों से कि मेरे दादी जी के पिताजी वे मेरठ से आए थे। जब मैं लोगों को बताता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि आप तो भोजपुरी प्रांत से नहीं हैं, तो आप भोजपुरी कैसे बोल लेते हैं? तो मैं कहता हूँ कि भाषा जो होती है वो जोड़ने के लिए होती है। हमारी पहचान भाषा से नहीं होती है। हम अपनी पहचान बनाते हैं भाषाओं के माध्यम से। जिस भाषा से में हम ढलना चाहेंगे उसमें ढल जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर शारदा प्रसाद दीदी जी को। ये हमारे इन्होंने ही सब सँभाला था और इन्होंने कार्यक्रम इन्होंने ढाँचा तैयार किया, केवल मुझको उस ऊपरी लिपापोती करने के लिए दिया था। मैं उनके लिए बहुत-बहुत उनके प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद दीदी। मंच पर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सोमदत्त भाई। वास्तव में मुझे सच कहूँ तो एक छोटा भाई मिल गया है जो मेरा दाहिना हाथ बन गया है। मैं इसे सिर्फ धन्यवाद से इस शब्द को पूरा नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि धन्यवाद से आगे 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 भी बहुत कुछ है। मैं सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को झारखंडी जोहार के साथ अपनी वाणी आरंभ करूंगी। आज का यह जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम सभी उपस्थित हुए हैं और यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा देश ऐसा देश है जहां विविध भाषाएं बोली जाती हैं और हम सब इस अलग-अलग भाषाओं के फूल हैं, किंतु एक ही माला में बंधे हुए हैं और जो इस कार्यक्रम के माध्यम से सिद्ध भी होता है। मैं सर्वप्रथम आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, नागरी लिपि परिषद के जो माननीय कर्मठ महामंत्री हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने नागरी लिपि का जो प्रचार प्रसार किया और हमें हमेशा इसलिए प्रेरित करते हैं कि हम कार्यक्रम आयोजित करें। इसके लिए इनका हृदय तल से आभार है। मैं आज की जो कुलाधिपति प्रोफेसर डॉक्टर सविता सेंगर जी हैं, किंतु वो किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाई, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी, जो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं और जिन्होंने 80 वसंत देखने के बाद भी आज हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एक युवा आत्मा है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ, जो हमेशा अपने वचनों से, अपने आशीष से हम सबों को प्रेरणा देती हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राजशेखर जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने अपने गहन गंभीर भाषण से हमें समृद्ध किया। मैं श्री देवी दुरई जी को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने स्वागत भाषण दिया और अनेक हमारे विद्वत वक्ताओं का परिचय प्रस्तुत किया। रेणु चमन जी जो मॉरिशस से हैं, उनका हार्दिक आभार है। श्रीमती सलोनी, जिन्होंने तमिल भाषा में संबोधन किया और गीत प्रस्तुत किया। जैसा कि महेंद्र सिंह जी ने भी कहा, भाषा भले ही अनेक हो, किंतु हमारे भाव एक हैं। भावनाएं भाषा की मोहताज
नहीं है। आंसू और मुस्कान की कोई भाषा नहीं होती है, वह तो बस हृदय की भाषा होती है। तो मैं इन्हें भी हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। अशोक भार्गव जी, जिन्होंने अपने भाषण से हमें समृद्ध किया, उनका हार्दिक आभार है। डॉक्टर सी जे प्रसन्ना जी, जिन्होंने मलयालम भाषा में हमें अनेक नई जानकारियां दी, उनका भी हार्दिक आभार अभिनंदन है। महेंद्र सिंह जी, मनोज झा, जितेंद्र जी, रतिराम गढ़वाल जी, डॉक्टर रश्मि, मोहन द्विवेदी जी, अंजू पांचाल जी, मोहम्मद इसहाक खां, डॉक्टर स्वाति पांडे, जो देर से जुड़ी हुई थी किंतु अभी निकल गई हैं, अभी मुझे दिख नहीं रही हैं, वो है या नहीं मुझे पता नहीं चल पा रहा है। अनुज जी, मैं सबका हृदय तल से आभार ज्ञापित करती हूँ। मुक्ता कौशिक जी, जिन्होंने आज गुरु घासीदास जी के जन्म दिवस की भी चर्चा की, हम आज इस मंच से गुरु घासीदास जी को भी नमन करते हैं और उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। झारेंद्र जी, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, श्री अमरकांत झा जी, जो उपस्थित नहीं हो पाए, डॉक्टर पीयूष रंजन जी, जो उपस्थित नहीं हो पाए, किन्हीं कारणों से उपस्थित न भी हो, किंतु हम उनका भी आभार ज्ञापित करते हैं। श्री डॉक्टर विवेक बाजपुरे जी, जिनके विषय में हम कह सकते हैं, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इतनी छोटी उम्र में इन्होंने भी गागर में सागर जैसी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। डॉक्टर रजनी गुप्ता भी, उन्हें भी आना था किंतु वह नहीं आ पाई हैं। वह भी मत्स्य विभाग में है और जो विज्ञान की छात्रा हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदी में रचनाएं करती हैं, उनका भी हृदय तल से आभार है। इसके साथ ही साथ रश्मि चौबे जी हैं, अन्य और अनुज जी हैं, अंजू जी हैं, मैं और देख नहीं पा रही हूँ। सभी विद्वत जनों का जो इस मंच से जुड़े हैं, मैं सबका हृदय तल से आभार ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच के लिए शुभकामनाएं अर्पित की हैं, अपना सहयोग अर्पित किया है। मैं समस्त विद्वत जनों का सत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनका आभार ज्ञापित करती हूँ। मैं झारखंड क्षेत्र से हूँ और झारखंड में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं और मैं जिस क्षेत्र से हूँ वह खोरठा बहुल है। नागपुरी और सदरी भाषा भी बोली जाती है। तो मैं एक बार सदरी भाषा में भी आप सबों का स्वागत करना चाहूंगी। हमरे मन एक भारत के छौवा मनाही, हमर भाषा भले बखरा बखरा है, लेकिन भाव सबकर एके आहे। और मैं बंगला भाषा, खुदीराम बोस को हम सबने जाना है और बचपन में मुझे बंगला सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं खुदीराम बोस, जिनकी 2-4 पंक्तियां, उनका गाना जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और मुझे बचपन से ही बहुत प्रिय है, मैं सिर्फ 2 पंक्ति यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक बार विदाई दाओ माँ घुरे आसी, एक बार विदाई दाओ माँ घुरे आसी, हासी हासी पड़बो फांसी, हासी हासी पड़बो फांसी, देखबे भारतबासी, एक बार विदाई दाओ माँ घुरे आसी, एक बार विदाई दाओ माँ घुरे आसी। भारत माँ के प्रति उनका यह प्रेम था और वे विदा मांगते हैं और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे वीर सपूत को हम नमन करते हैं इस मंच से और समस्त सुहृद जनों को जिन्होंने इस मंच को समृद्ध किया है, उनका आभार और
सबसे अधिक आभार जो इस मंच का संचालन किया, संयोजन किया और बहुत ही परिश्रम से पोस्टर तैयार किया। उन विभूति डॉक्टर सोमदत्त जी को मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। डॉक्टर सोमदत्त सिर्फ हिंदी ही नहीं, तमिल, बांग्ला, भोजपुरी, अंग्रेजी के विद्वान हैं और बड़े ही परिश्रमी हैं तथा वे सबों के लिए हमेशा काम करने को तत्पर रहते हैं और नागरी भाषा के सपूत हैं। मैं इनका हृदय तल से आभार ज्ञापित करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य शारदा जी आपका। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर कार्यक्रम किया आपने और धन्यवाद, आपने मुझे भी बुलाया, निमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सूचना साझा करनी है सोमदत्त जी। जी सोमदत्त जी, एक सूचना साझा करनी है। नीदरलैंड से डॉक्टर रामा तक्षक को जोड़ना था, लेकिन उनका गला इतना बैठा हुआ है कि वो बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनकी ओर से आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ, वरना वो हमारे साथ जरूर उपस्थित होते। उन्हें भी हमारी बहुत जुड़ते हैं बहुत जी। शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद है, आभार है। और इस मंच से मैं आपको डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया है वह हम सबका सम्मान है और हम सबका पुरस्कार है। आज चूंकि डॉक्टर मुक्ता कौशिक ने बताया कि आज गुरु घासीदास जी की जयंती है, घासीराम जी की, तो ये पुरस्कार मुझे गुरु घासीदास के नाम पर ही मिला था छत्तीसगढ़ से। बहुत बधाइयाँ। और मैं और बतलाना चाहूंगी कि मैं जब पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो मेरे गुरुजी डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी उस समय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में ही प्राध्यापक थे और मैं वहीं से पीएचडी का काम शुरू की थी। और जी, और दूसरा पुरस्कार मुझे नीदरलैंड से मिला, वो था मैक्स मुलर नागरी अलंकरण सम्मान, नागरी लिपि वो था। ठीक है, ये सब चलता रहता है, ये सब आप लोगों की शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सबके लिए, बहुत बहुत। सर मैं अंतिम वाक्य मेरी ओर बोलना से भी चाहूंगा। हरिपाल सिंह जी को बहुत बहुत आभार है और बधाई है। और ये दूसरी बार मौका मिला है कि मैं सोमदत्त जी और आपके साथ सामने प्रत्यक्ष से यहाँ बैठा हूँ। आप दोनों को बहुत आभार, खास करके शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास झारखंड की ओर से मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। अतुल कोठारी जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। अभी मुझे प्रांत का दायित्व है, प्रांत अच्छा, संयोजक का। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। जी जी, मैं धन्यवाद। एक बात इस मंच से कहना चाहूंगी, जो बात मेरे मन में आ रही है कि हरि सिंह पाल जी तो संपादन करते हैं, एक पुस्तक निकाले जिसमें पूरे भारतीय भाषाओं की कविताओं का संकलन हो और हिंदी में है तो वो तो हिंदी में हो ही, किंतु अनुवाद के साथ हो। हाँ, नहीं, दरअसल इस तरह के और प्रयास पहले हो चुके हैं, लेकिन हाँ, किया जा सकता है। और हम तो नागरी संगम पत्रिका के माध्यम से प्रत्येक अंक में अनेक भाषाओं को नागरी लिपि में लिखते हैं, फिर उसका हिंदी में अनुवाद देते हैं। जैसे अगले वाला जो अंक आ रहा है उसमें मैं फारसी भाषा ली है, पिछले में हमने कश्मीरी भाषा ली थी, उससे पहले हमने मणिपुरी भाषा ली थी। हम तो मतलब नागरी संगम के माध्यम से तो ये कर ही रहे। यदि हाँ उनका भी संकलन कर लिया जाए तो पूरी एक किताब बन जाएगी। बहुत अच्छी कविताओं का संकलन। हाँ हाँ, वो कविता ही देते हैं, हम कविता ही देते हैं वो। अंतर भारतीय नाम से देते हैं, तो कविता ही देते हैं विभिन्न भारतीय भाषाओं की। अंतर उसका भारतीय के नाम से आता है, जी मैं जी पढ़ी जी, हूँ। है ना जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि सभी। जी, बहुत नमस्कार सभी को, शुभ बहुत बहुत रात्रि। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच संचालन कर रहे आदरणीय को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया है। सर, एक और निश्चित अनुग्रह था निश्चित। कि अगली बार से आपके फेस पर चेहरे पर अगर लाइट होगी, प्रकाश पड़ेगा तो अच्छा रहेगा, जिससे कि हम लोग भी रिकॉर्डिंग में चेहरा आपका प्रत्यक्ष देख देख पाएंगे। ठीक है। शुभ रात्रि सभी को, शुभ शुभ तुमने पहले एनिमेशन कर दिया, तुमने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, हमसे ही बोल रहे हो। तो इसकी बहुत जेंडर पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल में। तो इंडिया का अभी तक ये सब था नहीं ना।
अब जाके